الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، حفاظ نظام اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کا یہ جلسہ جو ایک ادارے کی تعمیر و ترقی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ترقی کی راہ میں اس ادارے کو گامزن فرمائے. آپ کے گاؤں میں ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد ڈالی گئی ہے جس کا نام جامعہ دار ارقم رکھا گیا ہے، اور مولانا نوشاد صاحب نے بیان کیا کہ 120 بچے اور بچیاں اس میں اس وقت زیر تعلیم ہیں. اس کے لیے کچھ زمینیں بھی فراہم ہو چکی ہیں، مزید آگے فراہمی کی کوشش چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. یہ ادارہ جو آپ کے یہاں قائم ہوا ہے اور جس کے بعد مہانندہ اور نبی ہے، آپ جانتے ہیں ان اداروں کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی مومن کے سامنے اصل چیز وہ آخرت، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مکان بنانا تجارت کرنا زمین خریدنا، یہ ساری چیزیں تو صرف یہاں کے رہنے کے لیے ذرائع اور اسباب ہیں. آخری زندگی تو آخرت کی زندگی. بچی نے کیا سنایا مکالمے میں آپ کو؟ اگر ہم اور آپ اس مکالمے کو غور سے سن کر اسی پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بعث بعد الموت کے بارے ان دو بچیوں نے آپ کو مکالمہ سنایا. بعث کے معنی اٹھانا اور بعد الموت کے معنی موت کے بعد، یعنی ہم جب مر کر مٹی میں فنا ہو جائیں گے دوبارہ پھر اٹھایا جائے. اور جیسے اس شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی اسی شکل میں اسی جسم کے ساتھ اسی کھال کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ اور بال کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا. سوال جواب ہوں گے اور ہر آدمی کو اس کو عمل کے مطابق بدلہ ملے گا. یہ ادارے یہ دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، داڑھی کی حفاظت کے لیے، ٹوپی کی حفاظت کے لیے یہ ادارے قائم ہوتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مولوی صاحب کو کچھ روزی روٹی نہیں مل رہی تھی تو ایک مدرسہ ہی کھول لیا. ارے جیسے آپ کے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، مولوی صاحب کے بھی ہیں، وہ بھی دھان کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی روپا گاڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر طبقہ کا انسان الگ الگ بنایا. ہر ایک کھیتی میں لگ جائے گا تو ڈاکٹری کون کرے گا، اور ہر ایک ڈاکٹری میں لگ جائے گا تو گیہوں کون اپجائے گا، اور ہر ایک گیہوں اپجانے میں لگ جائے گا مکان کون بنائے گا، اور ہر ایک مکان ہی بنانے میں لگ جائے تو پھر
सड़क कौन बनाएगा, बिजली कौन तैयार करेगा, एटम बम कौन तैयार करेगा, राइफल कौन तैयार करेगा, दुश्मन से कौन लड़ेगा, मुल्क की हिफाजत कौन करेगा, सरहद पे जाकर के जाग कर मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। हर तबके के इंसान को अल्लाह ने बनाया और उसको उसमें लगा दिया। मौलवी, हाफिज, मौलाना, कारी, काजी, मुफ्ती, ये कौम का सरमाया है, कौम के रहनुमा है, कौम के रहबर हैं, इस्लाम की रहनुमाई करने वाले और ईमान की तालीमात देने वाले हैं। ये कुरान करीम ने फारिग होने वाले और पढ़ने वाले उलमा और हुफ्फाज के लिए जो जिम्मेदारी बयान की है उसमें फरमाया वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजअू, तफक्कुह फी दीन हासिल करने के बाद ये बेहतर नहीं होगा कि तुम रोपा गाड़ने जाओ, धान काटने जाओ। अपने कौम में जाकर के इंजार और तहजीर करो, आखिरत की बातें उनको बताओ, जहन्नम के अजाब से उनको डराओ, जन्नत की नियामतों का उनके सामने तज़किरा करो, आमाल के करने की तरगीब और शौक दिलाओ। ये उलमा और हुफ्फाज का काम है। लेकिन अगर कोई करता है दुनियावी काम भी, ये नाजायज और हराम नहीं है। अजीज दोस्तों, ये मदारिस जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का मुकम्मल तसल्लुत हो गया था, अकाबिर ने ये समझा कि दीन की हिफाजत का अब जरिया यह है कि एक दीन का इदारा कायम किया जाए, वरना इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, दीन बाकी नहीं रहेगा। दीन और ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए कुछ इदारे और मदरसे होने चाहिए। सवाल यह आया, ये मदरसा चलेगा कैसे, चलेगा कैसे? हुकूमत अंग्रेज के पास चली गई, कोई जागीर नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई बहुत बड़ा मालदार नहीं कि उसने कह दिया हो इदारा चलाओ हम पैसे देंगे। अकाबिर ने कहा इस कौम का मिजाज बनाओ, 1 रुपया 2 रुपया करके जमा करे और फिर इदारे पे खर्च करे, तभी ईमान और इस्लाम बाकी रह सकता है, उसके अलावा कोई चारे कार नहीं। अल्लामा इकबाल का कौल बहुत मशहूर है। अल्लामा इकबाल को जानते ही नहीं आप लोग। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था इन मदारिस को और मकातिब को और इन मुल्लाओं को इसी हाल में छोड़ दो, इनको इसी तरह पढ़ाने दो और इन बच्चों को इसी तरह इनमें पढ़ने दो। खुदा न खास्ता ये मुल्ले, ये मौलाना, ये मदरसे और मकतब न रहे तो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का वही हाल होगा जो स्पेन के अंदर हुआ कि 700 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। जामिया करतबा इतनी बड़ी मस्जिद है कि अभी भी इतनी बड़ी मस्जिद के नहीं बनी, लेकिन आज वहां इस्लाम का कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं। फरमाया अगर ये नहीं करने दोगे इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ईमान और इस्लाम का नाम ज़बानी सिर्फ थोड़ा है। जब तक इंसान अहकाम पर अमल नहीं करेगा, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करेगा, वो अबदी जिंदगी को कैसे हासिल कर सकता है? और कुरान और हदीस का इल्म कहां आपको मिलेगा? इन्हीं इदारों में मिलेगा, इन्हीं इदारों में मिलेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया, मैं तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया, मैं मुदर्रिस और तदरीस देने वाला बनाकर भेजा गया। नबी ने ये नहीं फरमाया मैं ताजिर बनाकर भेजा गया, मैं मालदार बनाकर भेजा गया, या मैं इंजीनियर और डॉक्टर बनाकर भेजा गया। नहीं, मुझे जो अल्लाह ने भेजा है मुअल्लिम बनाकर भेजा। इसीलिए कुरान करीम की पहली वही, अल्लाह की पहली वही और पहली आयत जो नाजिल हुई वो तालीम से मुतालिक हुई। इंसान तालीम ही के जरिए से बुलंदी को पहुंच सकता है,
قوم کے عروج و زوال کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تاریخ کے اندر قوم کی ترقی اور تنزلی عروج اور زوال کا جو سب سے بڑا سبب رہا ہے وہ تعلیم اور علم ہی رہا، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجیے صاحب، ٹیکنالوجی سائنس وغیرہ کے اعتبار سے جو ملک جتنا آگے ہے وہ اتنا ہی سپر پاور ہے۔ آج بھی ہمارا ملک روس سے ہتھیار خریدتا ہے، تو روس ہمارے ملک کے مقابلے میں ٹیکنالوجی اور سائنس میں اور میزائل ہتھیار بنانے میں مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے لوگ امریکہ سے ہتھیار خریدتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مضبوط ہے کہ نہیں؟ سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہی حال دینی تعلیم کا، ایک وہ قوم جن کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کا خطاب دیتے ہیں، اور ہم نہیں دیتے، آپ نہیں دیتے، قرآن نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ان کے اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے، سیرت سے، اعمال سے، افعال سے اللہ راضی ہو گیا، اور ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی چھوٹی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہی صحابہ جو دور جاہلیت میں تھے، ان کے پاس نہ دین کا علم تھا نہ دنیا کا علم تھا، تو جانتے ہیں ہر وقت جھڑتے گرتے رہتے تھے، لڑتے رہتے تھے۔ بات پہ اگر لڑائی شروع ہوئی چھوٹی سی بات میں مدتوں گزر جاتی تھی، لڑتے رہتے تھے۔ نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ علم تھا، نہ ثقافت تھی۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی تعلیم لے کر آئے، اللہ کی ہدایات کو لے کر آئے، اللہ کے احکام کو لے کر آئے، قرآن اور حدیث کا علم لے کر آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے علم پیش کیا، اور اس علم کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس ہوا، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہ گوار اور جاہل قوم جن کو دور جاہلیت سے پکارا جاتا ہے، وہ اس وقت کے سپر پاور روم اور فارس کے اوپر قبضہ کر لیے اور اپنی فتح کا جھنڈا وہاں پر لہرا لیا۔ کس چیز سے ہوا یہ؟ علم کی وجہ سے ہوا، اور علم کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ہوا۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پڑھ کے کیا کریں گے، مدرسے میں مولوی صاحب بنے گا، حافظ جی بنے گا، 4000 روپے تنخواہ، کیا کرے گا وہ؟ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ بنا لے گا، بہت بڑا تاجر بن جائے گا اور بہت بڑے مالدار بن جائے گا، بڑی تنخواہیں مل جائے گی۔ ارے بھائی، یہ لائن تو اس لیے ہے کہ اللہ کی معرفت ہو جائے، حاصل ہو جائے، اور اللہ کو پہچاننا آ جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ آپ نے کسی مولوی اور حافظ کو نہیں دیکھا ہوگا جو بھوکے مر رہا، ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ انہی دونوں نے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اور علم کو اور فقہ کو آگے بڑھایا، اور انہی کے ذریعے ان کا فقہ اور ان کا علم پھیلا ہے پوری دنیا میں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں لکھا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ تھی، امام ابو حنیفہ کے مجلس میں اس کی ماں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان کو بھیجتی تھی مزدوری کے لیے، جاؤ بیٹا کہیں جاؤ، کام کاج کر کے 2-4 پیسے لاؤ، کچھ تو گھر چلے۔ وہ جاتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اس زمانے یہ مدرسے نہیں تھے اس طرح سے بنے ہوئے، ایک مولانا یہاں بیٹھ گئے اپنی بیٹھک میں، وہی پڑھا رہے ہیں، پوری علاقے کے لوگ وہی آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھ جاتے تھے، شام میں آیا بیٹا کچھ لائے؟
अब वो चुप खामोश। अरे कहाँ थे? कि अबू हनीफा के मजलिस पर बैठ के कुछ पढ़ रहा, सूझ रहा था, पढ़ रहा था। बेटा ऐसे घर कैसे चलेगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बिलाखिर उसको पकड़ के अबू हनीफा की मजलिस में उनकी माँ लेके गई और कहा, इमाम साहब आप तो इतने बड़े आदमी हैं, मेरा छोटा सा बच्चा ये यतीम है, मैं बेवा हूं, और आप ये आपकी मजलिस में आता है और आप उसको बैठा के पढ़ाने लगते हैं, हमारे इसका क्या होगा? हमें तो भूख लगी है। फरमाया चलो कोई बात नहीं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निगाहे बसीरत से ये समझ लिया कि ये बच्चा होनहार है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इसको फालूदा का हलवा खिला रहा हूं। किसका? फालूदा का हलवा खिला रहा हूं तुम्हारे बेटे को, और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद उन्होंने एक थैला निकाला। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े मालदार थे, इस इलाके में इतना बड़ा कोई मालदार नहीं होगा। इमाम थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, मुफस्सिर थे, सब कुछ थे, और साथ साथ बहुत बड़े आलिम थे, कपड़े की तिजारत करते थे। पूरा फालूदा का हलवा, ये क्या मजाक की बात। बहरहाल उन्होंने थैला निकाला, रुपए पैसे अशरफी से भरे हुए उसको दे दिया कि बेटे ये ले जाओ, तुम रोजाना यहाँ पढ़ने आया करो, और ये जब खत्म हो जाए तो मुझे बता दो। इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि खत्म होने से पहले ही इमाम साहब फिर मुझे दोबारा दे दिया करते थे। बहरहाल बन गए इमाम अबू यूसुफ और बन गए काजी, और बादशाह की मजलिस में, बादशाह के दरबार में पूरे मुल्क के काजी कुज़ात बन गए। एक मर्तबा बादशाह से मुलाकात करने गए और बैठे, इसी असना एक तश्त आया और ढका हुआ था, उसको खोला और बादशाह ने कहा, काजी साहब तशरीफ लाइए, ये जो हलवा है ये मेरे लिए भी कभी कभी बना करता है, आओ खाओ, तुम्हारे मुकद्दर से आज बना है। पूछा ये क्या है? फरमाया ये फालूदा का हलवा है। ये क्या है? फालूदा का हलवा है। इमाम यूसुफ कहते हैं, मुझे वो वाक़या याद आया जब अबू हनीफा ने कहा था कि तेरे बेटे को हम फालूदा का हलवा खिला रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, अरे हम नहीं खिलाते, आप नहीं खिलाते, अल्लाह उनको फालूदा का हलवा खिलाए। कोई भी मदरसे में पढ़ने वाला मुदर्रिस इंशाअल्लाह भूखे नहीं मर सकता, कल्लाश नहीं हो सकता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितने भी जानदार हैं दुनिया में, चींटी से लेके हाथी तक और इंसान से लेके मछलियों तक, अल्लाह क्या फरमाते जानते हैं? कुरान की आयत है, सबकी रोजी मेरे जिम्मे है, अल्लाह फरमाता है। तुम सोचते हो अपने बच्चे को हम खिलाते हैं, शौहर सोचता है बीवी को हम खिलाते हैं। अरे शौहर मर गया, वो बेवा हो गई, कौन खिला रहा है उसको? बाप सोचता है बेटी को हम खिलाते हैं, बाप मर गया, यतीम हो गया, कौन खिला रहा है? ये सबब है, सिर्फ सबब है। एक आदमी जवान है, तन्हा कमा के खाता है, शादी हो गई 2 को खिलाता है, 3 बच्चे हो गए 5 को खिला रहा है, वो खिला रहा है। अगर वो खिलाता तो शुरू में ही 5 का कमाई करता और बहुत सारे रुपए उसके पास बच जाते। हर इंसान को अल्लाह रिज्क देता है उसके मुकद्दर के मुताबिक। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने जानदार को पैदा किया और हर जानदार को रिज्क देगा। एक वाकया सुनाता हूं। मेरे एक साहब ने सुनाया, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, फिर भी सुना देता मुख्तसर अंदाज में, इसी रोजी के ऊपर। एक फकीर साहब थे, एक मस्जिद में गए और नमाज पढ़ के एक कोने में बैठ गए। वो यूपी की बात है, हमारे यहाँ की बात नहीं है। हमारे इलाके में न इमाम है न मुअज्जिन है, अजान हो गई तो इंतजार में नमाज कौन पढ़ाएगा, नमाज कौन पढ़ाएगा।
कोई निजाम ही नहीं साहब। तो नमाज पढ़ के बैठे, ईशा का टाइम था। वो जो मुअज्जिन साहब थे आए और कहने लगे, मियाँ तुम मुसाफिर आदमी हो, आओ खाना आया है, दोनों मिलके खा लें। कहा क्या खिला, क्या आया है? कहते दाल रोटी है। कभी हम दाल रोटी तो खाते नहीं, हम मुर्गे का पुलाव ही खाते हैं। अब आप और हम जैसे आदमी होगा तो क्या कहेगा, है तो फकीर और बातें लंबी लंबी कर रहा है। मैं कहा भाई फिर तुम रहो। वो सो गए। 12 बजे के बाद आधी रात जब हुई है, मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुअज्जिन साहब दौड़ के गए। एक कौन देखा, एक बुढ़िया है और एक देगची है उसके सर पे। कब बुढ़िया में अभी क्यों आई तू रात में? कब बेटा ऐसा है, मैंने ये नजर मानी थी, मेरा बेटा गायब हो गया था बहुत दिनों से, घर ही नहीं आया। मैंने ये नजर मानी थी कि जिस दिन मेरा बेटा आएगा और जिस वक्त आएगा मैं उसी वक्त मुर्गा पुलाव बना करके मस्जिद के इमाम साहब और मुअज्जिन को खिलाऊं। आज वो आया रात में, मैंने इसी वक्त बना करके, बनाने में देर हो गई, बेटा माफ करना, कबूल कर लो, खा लो। वो लिया उससे और जाके बड़े मियां को उठाया, उठ जाओ तुम्हारा मुर्गा पुलाव आ गया, खा लो। उसने हाथ वाथ धो के खाना शुरू किया और उस फकीर ने कहा, मैंने कसम खा रखी है 40 साल से, अल्लाह से वादा कर रखा है कि अल्लाह अगर तू खिलाएगा तो मुर्गा पुलाव ही खाऊंगा, उसके बगैर कुछ नहीं खाऊंगा। और अल्लाह मुझे खिला रहा है, अल्लाह मुझे खिला रहा है 40 साल से। और तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कलाम पढ़ेगा और हदीस पढ़ेगा, रिज़ा इलाही का इल्म हासिल करेगा, उसको रिस्क नहीं मिलेगा, उसकी रोजी नहीं मिलेगी। वो मामिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, रिस्क देने वाला तुम नहीं हो, रिस्क अल्लाह देता है। इसलिए अजीज दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके और हमारे हैं, जिनको हम मदारिस में भेजते हैं, या मकसद दुनिया कमाना नहीं है, या अल्लाह की रिजा को हासिल करने के लिए इल्म हासिल किया जाता है, इस पर जितना भी माल खर्च कर दिया जाए वो कम है। एक ताबई फर्रुख नाम के, मदीना के रहने वाले, खुरासान में बनु उमैया की खिलाफत के जमाने में खुरासान जंग करने के लिए फौज, और अपनी बीवी को 30,000 दिरहम देके गए। कितने दिरहम? 30,000 चांदी के सिक्के, काहे तुम रखो। चले गए जंग में और 27 साल के बाद जंग से वापस आए। 27 साल के बाद जब वापस आए, अपने घर पर पहुंचे, पैर से दरवाजे को खटखटाया, खोला तो अंदर से एक नौजवान लड़का निकला और उसने कहा, अरे ये बड़े मियां कहां से आ गया भाई, तुम हमारे घर में क्यों घुसना चाह रहे हो, अजनबी आदमी, भागो यहां से। फर्रुख ने कहा, ये मेरा घर है और तू कहां से आया मेरे घर में, अजनबी है, तू भाग यहां से। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगे। इतने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। तो क्या हुआ भाई? कहने लगे ये मेरा घर है। वो कह रहे नहीं, अजनबी आदमी हम आने नहीं देंगे, ये तो हमारा घर है। फिर उसने कहा, मैं फर्रुख हूं, ये मेरा घर है। तब लोग चौंके और उसकी जो बीवी अंदर थी दौड़ती हुई आई और उसने कहा, ये तो मेरे शौहर है और ये मेरा बेटा है। ये जब गए थे तो ये बेटा हालत हमल में था, पेट में था, और इनके जाने के बाद पैदा हुआ और 27 साल के बाद आया तो ये 27 साल का हो गया। अच्छा, फिर दोनों गले मिले और अंदर गए, खाना वाना खाया, रात हुई। लेकिन रूपी की मोहब्बत हर एक में होती है, चाहे वो मुजाहिद हो, गाजी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, काजी हो। उसने पहले यही पूछा, वो 30,000 दिरहम जो देके गए थे वो कहां है? कहा है, तुम घबराओ नहीं, अरे खाओ पियो आराम करो, इतने दिनों के बाद आए हो। रात में सो गए, सुबह ही उसको जल्दी से जगाया और कहा, जाओ अब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के आओ। चले गए नमाज पढ़ने के लिए। वही लड़का, उसका नाम है रबियातुर राय।
بہت بڑے محدث اور فقیہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے. مدینہ کے اندر اس وقت جو 7 بڑے بڑے فقہا تھے، فقیہ، فتویٰ دینے والے، ان میں سے ایک تھے وہ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے جو دوسرے درجے کے امام مالک ہیں ان کے وہ استاد ہیں. مدینہ کے اندر مسجد نبوی وہ پڑھاتے تھے اور امام مالک بھی ان کے درسگاہ میں بیٹھتے تھے. تابعی ہیں وہ. بہرحال مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. نماز کے بعد یہ جو ربیعۃ الرائے ہیں یہ حلقہ لگا کر بیٹھ گئے اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگ، عمراء، شرفاء، علماء آ کے ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گئے اور یہ پڑھانے لگے. وہ جو فروخ تھا گھوم رہا تھا، اس نے دیکھا ارے یہ کون آدمی ہے بھائی، یہ بڑے بڑے لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے. تو ربیعۃ الرائے نے ذرا سر کو جھکا لیا تاکہ وہ پہچان نہ پائے. کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ ارے اس کو تم نہیں پہچانتے؟ یہ ربیعۃ الرائے ہیں، فقیہ مدینہ ہیں، بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، ان کی تو مثال نہیں بھائی، تم کہاں کے ہو؟ اچھا. وہ چلے گئے گھر. یہ ربیعۃ الرائے انہی فروخ کا بیٹا ہے. اور بیوی کو جا کے پوچھا، کہا ارے تمہارے لڑکے ربیعۃ الرائے بیٹے کو میں نے آج ایسی شان میں دیکھا کہ ایسی شان تو مدینہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں، ایسی عظمت ہے ان کی، کسی کو حاصل نہیں ہے. اب اس کی بیوی نے فوراً کہا اب بتاؤ تم کو 30,000 دراہم پسند ہیں یا تمہارے بیٹے کی یہ شان اور یہ قدر اور یہ حیثیت پسند ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہمیں اس 30,000 روپے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو وہ پسند نہیں، ہمارے بیٹے کی جو یہ شان ہے، قدر ہے، عظمت ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا میں نے وہ سارے روپے تمہارے بیٹی کی تعلیم میں خرچ کر دیا. اس نے کہا خدا کی قسم تم نے میرے روپے کو صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے، ادھر ادھر کی جگہ میں خرچ نہیں کیا. عزیز دوستو، اسکول میں بھیجیں گے 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے تو 500 روپے دیں گے، اور مکتب میں بچہ آئے گا تو 40 روپیہ 100 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. وہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی چند باتیں سیکھ رہا ہے. اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں، اس علم کی ہمارے دلوں میں اہمیت حاصل نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو پہلے قرآن اور حدیث کی ابتدائی تعلیم دے دیجیے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنس بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو کچھ بنانا ہو بنائیے، لیکن آپ کا اور ہمارا بچہ دین کا علم پہلے حاصل کرے. میں ایک واقعہ صرف بیان کر کے رخصت ہوں گا، اس لیے کہ ایک دوسرے مقرر صاحب میرے پیچھے آ چکے ہیں. آپ اور ہم بچوں کی تربیت کریں. بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ہمارا بچہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتا ہے. ہمارا بچہ سیب لا کے اس کو دیا، وہ لے کر کے باہر کھاتا پھر رہا ہے. اب دوسرا بچہ جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کے دل میں ترس، کوئی یتیم ہے، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی سیب لا کے دیتا. یہ تہذیب اور ادب کے خلاف ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ادب کہلاتی ہیں. ان کو سکھائیے اور وہ چیزیں آئے گی علم سے. وہ آپ کی بھی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں، پاکستان کا واقعہ لکھا ہے. ایک پروگرام ہو رہا تھا اسکول میں، وہ تو اسلامی ملک ہے، وہاں اسکول میں بھی قرآن، حدیث، اردو وغیرہ سب پڑھاتے ہیں. تو پروگرام اسی طرح ہو رہا تھا بچوں کا. ایک بچے نے ایک شعر پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. جو ڈائریکٹر آیا ہوا تھا سب سے بڑا، اس نے کہا یہ شعر اس بچے نے پڑھا، شعر بھی غلط پڑھا، کیا تم لوگ پڑھاتے؟ استاذ کی تو خفت ہوئی.
बेइज्जती हुई। इसको सही से पढ़ाया था लेकिन स्टेज पे गलत पढ़ दिया, बात आई चली गई। क्लास के अंदर 2-3 दिन के बाद एक दिन वही मास्टर आया क्लास में और सब बच्चे से पूछने लगा कि बताओ नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या नाम है? किसी ने कहा मोहम्मद, करे दूसरा क्या नाम है? तो सब बच्चों ने बता दिया अहमद अहमद अहमद। वो जो बच्चा जिसने वो शेर पढ़ा था नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, उसका नंबर आया तो वो खामोश रहा, बोल ही नहीं रहा। अब उस्ताद को आया गुस्सा, जाकर के खूब मारा उसको। उस दिन शेर भी गलत पढ़ा, डायरेक्टर आए थे, हम लोग को परेशान किए, वो बेइज्जत किए। आज तुझे नबी का नाम पूछ रहे और नबी का नाम नहीं बता रहा, तू क्या करता है? खूब मारा पीटा। इतने में छुट्टी हुई टिफिन की। 15 मिनट के बाद फिर क्लास में आया, फिर उसी को मुखातब किया, बोलेगा नहीं नबी का क्या नाम? उसने कहा अहमद, दूसरा नाम अहमद है। अब मास्टर ने सोचा कोई राज जरूर है इसमें, कि बेटा ऐसा है तूने उस दिन शेर गलत पढ़ दिया, आज तुमको कह रहे हैं कि नाम क्या है नबी का, वो नहीं बताया, अभी फिर बता रहा, वजह क्या है? उसने कहा कि असल में बात यह है कि मैं एक यतीम लड़का हूं, मेरा बाप मर चुका है। छोटे ही में मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि बेटे कभी भी नबी का नाम लोगे तो अदब से लेना, इसीलिए मैंने वाले पढ़ा, वाला नहीं पढ़ा। शायर ने कहा है नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे नबियों के बरलाने वाला। ये मौलाना लोग बैठे हैं, वाला अदब नहीं है, वाले अदब। इसलिए अदब चूंकि रहमत लक़ब पाने वाले में है, इसलिए मैंने लफ्ज वाले बोला, वाला नहीं बोला, चूंकि मेरे वालिद ने कह दिया था। और ये जो मैंने नाम नहीं लिया, मुझे मालूम था कि आपका नाम दूसरा अहमद है, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहा था बेटा नबी का नाम कभी भी बगैर वजू के मत लेना। आपने जिस वक्त पूछा था कि नबी का क्या नाम है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था, अगर मार कर आप टुकड़ा भी कर देते मुझे, मैं नबी का नाम बगैर वजू के जबान से नहीं ले सकता था। टिफिन की छुट्टी हुई, मैं वजू करने गया और वजू करके वापस आया, आपने पूछा तो मैंने नबी का नाम बता दिया। ऐसी तरबियत आपको और हमको अपने बच्चों को देना है। और जब ये तरबियत देंगे, खुदा की कसम, ईमान की खातिर वो जान दे सकता है, मर सकता है, झुक नहीं सकता, ईमान को बेच नहीं सकता। आज हमारी और आपकी तालीम और तरबियत की कमी है कि आपकी लड़कियां, मुआशरे की लड़कियां, समाज की लड़कियां गैर मुस्लिमों के पास जा रही हैं। नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह। एक ईमान की कीमत कितनी है आप और हम पहचान नहीं सकते। जिस दिन कोई ईमान वाला नहीं रहेगा, इस दुनिया को खत्म कर दिया जाए, कायनात के निजाम को दरहम बरहम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक ईमान वाली लड़की स्कूल में दे दिया, न तालीम है, न तरबियत है, न अल्लाह का खौफ है, न अल्लाह से डर है, न ईमान की अहमियत है, न जन्नत का शौक है, न जहन्नम का खौफ है। सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के लिए वो दूसरे के साथ चली जाती है और अपने ईमान को बदल करके ईमान का सौदा कर लेती है। क्यों? तालीम भी नहीं, तरबियत भी। उस तालीम से कुछ भी नहीं होगा जिससे अल्लाह को न पहचाना जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो। तालीम वो चाहिए जो जन्नत में ले जाए, तालीम वो ना हो जो जहन्नम का रास्ता दिखाए। इसलिए इन मदारिस को गनीमत समझिए, ये मदरसे नहीं है, ईमान की और इस्लाम की हिफाजत के लिए किले हैं, किले। खुदा के वास्ते इनको सींचिए। मालूम 27 डिसमिल जमीन हासिल हो चुकी है और थोड़ी सी जमीन की इनको और जरूरत है। अरे भाई वक्फ कर दीजिए, वक्फ कर दीजिए, 1-1 डिसमिल जमीन दे दीजिए। जो 1 डिसमिल जमीन आप दे देंगे यही असल है। और 50 बीघा छोड़ के मर गए, वो आपके लिए नहीं। इंसान का माल वो है जो उसने खा लिया और जो उसने पहन लिया और जो उसने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, और इसके अलावा जो माल है वो उसका नहीं है, वारिसों का है। सही हदीस में बयान कर रहा हूं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया।
इस इलाके के, माफ कीजिएगा, ये मिजाज ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। एक मस्जिद बनवा लेते हैं और मस्जिद की जमीन को मस्जिद के नाम से रजिस्ट्री नहीं करते। दे दिया है जमीन को, रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? रजिस्ट्री कर लेंगे तो दूसरे लोग यहाँ के दादागिरी करेंगे। या खुदा, अरे अल्लाह को दे दिया जन्नत के लिए और सोच रहा है कि रजिस्ट्री कर देंगे तो गांव वाले मालिक हो जाएंगे। गांव वाला मालिक कहां होगा? तो अल्लाह मालिक हो चुका है। मस्जिद बन के तैयार हुई और एक वक्त की नमाज जमात के साथ हो गई, वो मस्जिद शरई बन चुकी है। क़यामत तक वो मस्जिद शरई है, आप रजिस्ट्री करके दें कि न दें। लेकिन कानून के एतबार से जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में कानून के एतबार से जब तक आप लिखेंगे नहीं, वो जमीन मस्जिद की नहीं होगी। बिल्कुल वो जमीन रिकॉर्ड के अंदर मस्जिद की नहीं हो सकती है। मस्जिद बनाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करते, क्या मस्जिद मदरसे में देंगे? मौलाना और 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। देखिए, मैं बंगाल में 15-17 साल रहा, 14-15 साल। अब भी वहां का मिजाज है। कुछ दिनों पहले मैं गया था एक जगह, मैंने मुलाकात की, लोगों ने बताया कि मौलाना मुफ्ती साहब ये नया मदरसा कायम किया है। मैंने कही जमीन, और देखिए जिस जगह वो मदरसा कायम हुआ है 3 तरफ से सड़क है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। उस जमीन की हैसियत आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा ये आधे बीघा तो हम लोग खरीदे हैं और ये 6 बीघे जमीन लोगों ने वक्फ कर दिया है। अरे वहां 6 बीघा वक्फ कर रहा है या 6 डिसमिल देने के लिए तैयार नहीं। 6 डिसमिल छोड़िए नहीं, 1 डिसमिल देने के लिए तैयार है। मैंने इदारा कायम किया, 55 डिसमिल जमीनें मैंने खरीदी कई मरतबा में। एक जमीन का 4 मरतबा रजिस्ट्री करना पड़ा, लेकिन उसमें भी लोग टांग अड़ाते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। या खुदा, क्या हो गया इस मुस्लिम कौम को? क्या हो गया? कौन सी बीमारी इसमें आ गई? उसी बंगाल 24 परगना की एक औरत जिसका नाम था सौलतुन्निसा, आज से 150 साल पहले हज करने गई, लावलत थी, औलाद नहीं, बाप की से उनको बहुत बड़ी जायदाद हासिल हुई थी। बोरी में भर के, थैले में भर के अशरफियां, सोने और चांदी के सिक्के हज करने के लिए गई। 6 महीना जाने में लगते थे, 6 महीना आने में लगते थे। वो दौर था। उसने ये नियत की थी कि वहां जाके कोई मुस्लिम मुसाफिर खाना बनाएगा। उस वक्त वहां हिंदुस्तान के निहायत ही मुमताज और बड़े आलिम मौलाना रहमतुल्लाह साहब कहरानवी वहां मौजूद थे, जिन्होंने अंग्रेज के साथ जो पंडित आए थे और पोप आए थे उनके साथ बड़े बड़े मुनाजरा किए अलीगढ़ वगैरह में, और यहां से भगाया हुआ। और यही पोप जब पहुंचा था तुर्की, तो वहां का जो बादशाह था, खलीफा, उसने कहा कि अरे ये कौन आया है ईसाइयत फैलाने के लिए, चैलेंज कर रहा है, कोई आदमी अगर हो तो बताओ। वहां से हरम भेजा आदमी, एलची, और कहा कि हरम में अगर कोई ऐसा आदमी हो मक्के में तो जरा यहां भेजो। मालूम यह हुआ रहमतुल्लाह कहरानवी ने ही उस पोप को हिंदुस्तान से भगाया था। रहमतुल्लाह कहरानवी साहब वहां से रवाना हुए, अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वो भाग गए। वो था मौलाना रहमतुल्लाह कहरानवी, बहुत बड़े आदमी, इजहारुल हक के नाम से बड़ी किताब लिखी रद्द ईसाइयत के ऊपर, और बहुत सारी किताबें हैं उनकी। उस वक्त वहां मौजूद थे। जाहिर है हिंदुस्तान का कोई भी जाएगा और हिंदुस्तान का कोई आलिम होगा तो मुलाकात करेंगे। सौलतुन्निसा ने उनसे मुलाकात की और कहा मेरा इरादा यह बन रहा है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं चाहता हूं, साथ लाई हूं, और मैं ये चाहती हूं कि मैं यहाँ मुसाफिर खाना बनाऊं। उन्होंने कहा कि देखो मुसाफिर खाना मत बनाओ, यहाँ एक मदरसा बनाओ। मौलवी और जितना बड़ा जो आलिम होगा उसकी निसाह है बसीरत उतनी ही आगे चलती है। एक छोटा सा मदरसा बना दो तो उनसे रुपए लेके जमीन खरीद करके और मदरसा बना दिया, और कहा बिल्कुल हरम के सामने। इस मजलिस के अंदर अगर कोई हज करने उम्रा करने गए होंगे, अभी जो अब्दुल्ला गेट बना है उस अब्दुल्ला गेट के पास ही वो मस्जिद, वो मदरसा था, और उसी के नाम से निस्बत करते हुए उस मदरसे का नाम रख दिया सौलतुन्निसा।
की तरफ निस्बत करते हुए उस मदरसे का नाम रखा मदरसा सौलतिया। हनफी मसलक का वो पहला इदारा था वहां, जो उस औरत ने हिंदुस्तान के 24 परगना से जाकर के हरम के अंदर मदरसा कायम कराया। आप तस्वीर कर सकते हैं, पैसे से जमीन खरीद कर। बाद में फिर उन्होंने कहा कि मौलाना ने कि पानी का इंतजाम नहीं हुआ है और मैं और रुपए भेज रहे हैं, पानी का भी इंतजाम कर दो। कुआं खोद के पानी के लिए इंतजाम किया। जो अब्दुल्ला गेट जिस साल हम 2015 में हज के लिए गए, वो बन के तैयार हुआ था, तो उस मदरसे को वहां से हटा करके दूसरी जगह ले गया। कौन? हुकूमत ने उसको दूसरी जगह मुंतकिल किया। आज भी वो मदरसा सौलतुन्निसा एक औरत के नाम से मशहूर है। किसने बनाया? बंगाल की एक औरत ने बनाया। आज हमारे यहाँ 2 डिसमिल 1 डिसमिल जमीन मांगना चाहते हैं तो जमीन देने के लिए तैयार नहीं। अजीज दोस्तों, तैयार हो जाइए। दीन और इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं, इन मदारिस का वजूद बहुत जरूरी है। और देखिए, इन उलमा से जुड़ के रहिए, कट के मत रहिए। 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ करके कोई ये ना समझ ले कि मैं मौलाना से अफजल हो गया। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, आलिम का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर। आलिम चांद है, कितने बड़े वली हो जाओ, कुतुब हो जाओ, अगर इल्म नहीं है, आलिम दीन नहीं है, आलिम दीन के रुतबे को नहीं पहुंचा जा सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके गांव और समाज में जो इदारा बनने जा रहा है, हर एतबार से आप उसका ताउन कीजिए। जरूरी नहीं 5 लाख दे देना, 5 ही रुपया दे दिया। जिसकी जमीन यहाँ पर करीब में हो, मैं दरखास्त करूंगा 1-8 डिसमिल जमीन आप उसमें वक्फ कीजिए। यही आखिरत का सौदा है, यही आखिरत का सौदा है। इंशाअल्लाह उसके बदले में उसको जन्नत के अंदर बहुत बड़ी जगह मिलेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ रुखसत होता हूँ। और इस इदारे में मैं भी उंगली कटा के शहीदों के नाम, हम तो मोहल्ला लोग हैं, फिर भी 500 रुपए चंदा दे रहे हैं। दुआ कर दीजिए हमारे चंदा को अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।